Good morning, sir. Morning. Good morning. Morning, sir. Good morning. सुप्रभात सर। सुप्रभात आपको भी बहुत बहुत सुप्रभात। Good morning, sir. Morning, very good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम आपको भी बहुत बहुत। सर प्रणाम। प्रणाम। गुड मॉर्निंग। प्रणाम सर जी, प्रणाम। प्रणाम आपको बहुत। सर स्टार्ट करिए सर, स्टार्ट करिए। Okay, start करें। 77 have joined so far. Anyway, so let us start our work. It's exactly 9. Last time we discussed choice-based credit system, and I told you that one of the conditions for its implementation is that universities should declare the results in terms of grades instead of the traditional numerical mark. But how to award the grades? ग्रेड्स को कैसे अवार्ड किया जाएगा उसका डिस्कशन हम आज करते हैं. And we'll talk about what grade means and what the statistical logic behind grading is, and then what are the different methods of awarding grades, and then what the limitations are, everything. ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम है वो कैसे होगा, क्या तरीके हैं उसके, कितने मेथड्स हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, and now I'm going to share. Good morning, sir. Good morning. Suprabhat sir ji. Good morning. Good morning, Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। हाँ साहब देखिए, is it visible? Yes, sir. It is visible. यस सर, Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's nice. Yes, huh? sir. All right. All right. मोबाईल पट्टून खाल्लं चावला खाणे की आम्ही होती थोडी देत होती आम्ही खाऊ. Yes, sir. हाँ साहब प्लीज आप वो कर लीजिए, म्यूट कर लें so that इको नहीं आए, सब आवाज नहीं आए. So this is grading academic performance of students. This is the topic of today, which we are going to discuss. Under this, these are the points which we will be discussing. ये सब चीजें हैं, तीन चार पांच पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. जैसे वीकनेसेस ऑफ द ट्रेडिशनल न्यूमेरिकल मार्किंग सिस्टम, यानी जो चीजें हम करते आ रहे हैं अभी तक. क्या है कि हम न्यूमेरिकल मार्किंग में अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं और उनकी क्या कमियां हैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे. नीड ऑल्टरनेटिव अप्रोच इन दिस रिगार्ड एंड शिफ्टिंग टू लेटर ग्रेड्स और सिमिलर, की जरूरत क्यों है ये करेंगे. एंड देन बेसिक स्टैटिस्टिकल लॉजिक अंडरलाइंग द यूज ऑफ लेटर ग्रेड्स टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल न्यूमेरिकल मार्किंग. एक ये है, मैंने स्टैटिस्टिकली इसका एक लॉजिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे. ये एक इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. एंड देन वील टॉक अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ असाइनिंग ग्रेड्स, कितने तरीके हैं जिनसे हम ग्रेड्स असाइन कर सकते हैं, एंड देन what their limitations are. So these are some of the points which we'll be discussing under this. देखिए
ट्रेडिशनल जो हमारी प्रैक्टिस है एग्जामिनेशन की, ये क्या है? ट्रेडिशनली वी हैव बीन यूजिंग essay type examination, in which we ask some questions, and then the student is supposed to answer some of these questions based on their choices in terms of written communication, which goes on several pages for each answer, for each question. तो ये उसका तरीका है, हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पेपर देते हैं, और द स्टूडेंट हैज टू आंसर दोज क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. उसको लिखना पड़ता है. मैंने एक हम आंसर बुक देते हैं, उस पर वो लिखता है. एंड समटाइम्स द आंसर टू ए क्वेश्चन रन्स इनटू सेवरल पेजेस. कई पेजेस में 5-6 पेजेस में आंसर लिखना पड़ता है. And this answer is examined by specialists in the field. फिर उसको जो एक्सपर्ट होते हैं वो उसको एग्जामिन करते हैं, और on the basis of marks awarded by the expert examiners, the results are declared. So this is the process that we have been following so far. And the final result is declared in terms of percentage of marks obtained, and also in terms of the divisions in which they are placed, first division, second division, and so on. So this is the procedure that we have been following so far. अभी तक हमारा ये system रहा है. And at the same time, this system has been continuously criticized as being रिलायबल एंड इनवैलिड. तो साथ साथ हम ये भी कहते रहे हैं कि ये अप्रोच ठीक नहीं है, यानी उसको हम फॉलो भी करते रहे हैं लगातार, और हम ये भी कहते रहे हैं कि ये इट्स नॉट ए राइट अप्रोच, बिकॉज द परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय सेवरल वेरिएबल्स which are not supposed to be tested by the examiner, and marking behavior of the evaluator is also influenced by certain variables which have nothing to do with the quality of answer. ये चीजें हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसका आंसर की क्वालिटी से कोई मतलब नहीं, लेकिन एग्जामिनर का जो मार्किंग बिहेवियर है उस पर वो असर डालते हैं. जैसे क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग, अच्छा राइटिंग हो तो हमको जब इवेल्यूएट तो अच्छा लगता है, यानी दिस लीव्स द फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर. सबसे पहला जो इंप्रेशन है वो इसी का पड़ता है कि बहुत अच्छा राइटिंग है, तो एग्जामिनर टेंड्स टू गिव मोर मार्क्स. थोड़ा लिबरल हो जाता है एग्जामिनर कि भाई अच्छा राइटिंग है, पढ़ने के में आता है. एंड देन वोकेबुलरी, अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल, इंप्रेसिव वर्ड्स का इस्तेमाल. इफ समबडी यूजेस गुड वर्ड्स इन राइटिंग द आंसर, इंप्रेसिव वर्ड्स, that makes a difference, that affects the examiner's mental state of mind. तो उसको इफेक्ट करता है. तीसरी चीज है स्पीड ऑफ राइटिंग, कितना लिखा है ना. और जब स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं तो आपस में, मेरा तो इतने पेज भर गए, मैंने इतना लिखा, बहुत लिखा था, फिर भी मार्क्स क्यों कम आए, लाइक दैट. such statements are very frequently heard. बहुत आमतौर पर हम सुनते हैं बच्चों से, इतना लिख के आया था फिर भी मेरा इतना क्यों कम है. तो स्पीड ऑफ राइटिंग. So these are three extraneous factors that influence the quality of answer as well as the behavior of marking of the examiners. एक तो अच्छा handwriting and quality of handwriting, and the vocabulary of the examining, and also the speed of writing. तो ये सब चीजें हैं, और इसमें हमने अपना रिसर्च वगैरह भी की है, और पहले भी रिसर्च हुई है इस पर, और ये सब फैक्टर्स हैं जो कि पाए गए कि वे असर डालते हैं. एंड देन on the basis of such an examination, very significant decisions about the students' future are taken. यानी ऐसे एग्जामिनर्स को जिसको हम जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, वैलिड नहीं है, रिलायबल नहीं है, फिर भी
we take certain long-term decision about the future of the examinees. And students' marks are reported in terms of percentage in relation to the maximum marks allotted to the question paper or the examination. So this is how the traditional assessment of performance, academic performance goes on. And then finally, students are placed in various categories, which are decided only on the basis of pre-decided cut scores. पहले से हम cut score तय कर लिए कि 60 आएगा तो हम first class दे देंगे, 60 and above. And you know, if it is 45 to 59, it will be second division like this. So these are some of the criteria which we have decided in advance. And according to the performance, the students are placed in the various categories called divisions. उन जो categories को जो groups बनाते हैं उनको हम divisions कहते हैं. So this has been the traditional practice. And you know, this practice uses 101 point scale from 0 to 100. There is a scale, in fact. This is rejected as one of the poorest ways of measuring performance of students. 101 point scale है जिसकर हम ये करते हैं और फिर हम उनको डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं. Now we come to the statistical part of this, you know, these concepts. अब जो statistical part है उस पर थोड़ा हम आते हैं. और हम ये कहते हैं कि देखिए, every student, whatever marks are awarded by an examiner after reading his answers, these are obtained scores which are obtained by him and which are awarded by the examiner. But this is not the true score. This is not true score. ये नहीं, true score नहीं है. True score is something different from what is awarded by the examiner. So any true score, any observed score or obtained score has two components. ये दो component होते हैं. One is true and the other is error. In fact, every person or every measurement has a hypothetical true measurement. Fact is that we cannot measure anything in terms of its true score. True score को measure करना तो मुश्किल है. There is always an error. However accurate instrument we use, हम कितना ही accurate instrument use करें, true score को हम measure नहीं कर सकते. True score is only an hypothetical concept. So बहुत accurate अगर कोई instrument होगा तो उसमें कम error होगा. Sometimes, you know, the error may be very small, so that we can ignore it. ये possibilities हैं, but error will always be there. Error दो तरह के हो सकते हैं. Two types of errors are there in the measurement process. Random and systematic. दो तरह की errors हो सकती हैं, या हम कहें दो तरह की त्रुटि हो सकती है, और एक को कहते हैं random error, the other is systematic. देखिए, एक तो सिस्टमेटिक एरर को समझिए. सपोज देयर इज ए वेइंग मशीन, जो वेट करने के लिए मशीन होती है, डॉक्टर्स के यहाँ होती है अक्सर. एंड सपोज ए पर्टिकुलर मशीन ओवर मेजर्स एवरीबॉडीज वेट बाय ए सर्टेन परसेंटेज. यानी अगर कोई मशीन 1% वेट ज्यादा देती है या 2% वेट ज्यादा देती है, so this kind of error is systematic, because for everybody, you know, the machine will give
1 or 2% more than what his actual weight is. Actual weight से ज्यादा weight वो देगी, क्योंकि उसके ये, and this error is only in one direction, एक ही direction में है. It will always be positive, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, वो ज्यादा देती है. अच्छा, कम भी दे सकती है. There can be another machine which underweighs everybody's weight by certain percentage. तो ये भी पॉसिबिलिटी है. एक ऐसी मशीन भी हो सकती है जो कम वेट दे हर एक का. This kind of errors which are part of the measuring procedure or part of the measuring machine are called systematic error. उनको हम systematic errors कहते हैं. एक तो ये errors होती हैं. दूसरी errors होती है random errors. Random का मतलब है which are, these are also called chance errors, errors by chance. And these errors are not predictable. You cannot say whether these errors will be negative or these will be positive. Whether this error will reduce the actual measurement or this error will increase the actual measure and so on. माने प्लस होगा या माइनस होगा ये आप कह नहीं सकते हो. ठीक है. सो ये unpredictable errors होती हैं, and these are totally based on chance errors कहलाती है इसको. And systematic errors can be predicted in the sense that if we know that a person's weight is over measured by a machine by 1%, 1% ज्यादा देती है, तो आप बता सकते हो कि इसमें इतना एरर होगा, because you know that it always gives 1% more than what the exact weight is. तो ये predictables होती है. But random errors are unpredictable. उनको आप बता नहीं सकते कितनी होगी, how much error will be there, and what will be the direction of those errors. मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये आप कह नहीं सकते. तो ये दो तरह की एरर्स होती है. And therefore, in this way, each observed score, each measurement has two components: true component and error component. So any observed score or marks, जो भी marks awarded by the examiner, X, this is made up of T and E, T plus E. ये दो component होते हैं. And T is the true score, जो उसका hypothetical true score है वो T, plus E is error, which can be negative as well as positive, और negative positive हो सकता है, and which is a combination of both systematic and random error. ये E जो है ये दोनों तरह का combination है. Errors may be systematic or random, and systematic errors are one-sided. ये हम बात कर चुके हैं. Random errors may be positive and negative, ये भी हम कर. And these random errors, when all the scores of a group are summed, जब add किया जाता है, then when you add them, random errors cancel out. वो एक दूसरे को cancel कर देते हैं. And in large number of observations, mean of observed score equals true score. यानी observed score को हम जो obtained scores हैं उनके एवरेज को हम ट्रू स्कोर मानते हैं. देखिए एग्जांपल इस तरह लीजिए. सपोज वी हैव आयरन रॉड. एक आयरन रॉड हमारे पास है, सरिया जिसे कहते हैं. उसका हम ट्रू लेंथ निकालना चाहते हैं. एंड फॉर दैट वी यूज ए मीटर स्केल. तो हम मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं. बट वी नो दैट नो ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट इज true measurement. वो true नहीं है. There is always an error. Now, how do we estimate true measurement? True length की कैसे मालूम करेंगे? The procedure is, practical procedure is that we observe the length of that iron rod by using the same instrument, same meter scale, a large number of times. बार बार हम, suppose we measure 100 times
And these measurement may or may not be taken by the same person. वही आदमी ले ये भी जरूरी नहीं. Or maybe 100 persons use the same instrument to measure the same iron rod. यानी उसी रॉड को मेजर करने के लिए उसी इंस्ट्रूमेंट से 100 लोग उसको मेजर करते हैं. So there will be 100 observations. 100 observations only. Each observation will have an error. Some of them will be negative and some of them will be positive. And it is assumed that positive and negative errors are equally likely to occur. Barabar. We can assume safely that 50% of the times the errors will be positive and 50% of the times errors will be negative. तो अगर हमने 100 ऑब्जर्वेशन ली हैं तो हम ये मान सकते हैं कि 50 बार तो वो नेगेटिव एरर होगा और 50 बार पॉजिटिव होगा, बिकॉज एरर्स आर रैंडम एंड इक्वली लाइकली. सो मीन ऑफ दोज 100 ऑब्जर्वेशंस कैन बी टेकन एज ए ट्रू मेजरमेंट ऑफ दैट आयरन रोड. वो जो आयरन रोड है उसका जो ट्रू मेजरमेंट है वो उन सभी 100 ऑब्जर्वेशंस का मीन होगा, ये हम एज्यूम कर सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली आप ट्रू स्कोर को मेजर नहीं कर सकते, बट यू कैन एस्टिमेट इट बाय यूजिंग द सेम इंस्ट्रूमेंट लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स फॉर मेजरिंग द सेम थिंग एंड देन फाइंडिंग आउट द एवरेज. तो ये एंड दिस इज द बेस्ट एस्टिमेट. ये बेस्ट एस्टिमेट ये है ट्रू स्कोर मेजर करने का. तो ये एक चीज स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, ये मैं बताना चाहता था. नाउ वी कम टू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मार्किंग, अनदर कॉन्सेप्ट. जैसे आयरन रॉड की बात हुई, उसी से हम अब कंपेयर करते हैं ए स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड स्कोर्स. ऑब्टेन्ड स्कोर मींस द मार्क्स अवॉर्डेड बाय द एग्जामिनर, एंड सर्टेनली it is not his true score. It is not a true marks. True marks ये नहीं है. They have errors. तो उसमें error है. And if the same answer book is evaluated by large number of examiners, say 100 examiners, then there will be 100 marks. Each score will have an error, negative or positive. And if we find the mean of that those scores, it will be the best estimate of the true score of that person. ये hypothetical है idea actually. ट्रू स्कोर अगर हम किसी का निकालना चाहें तो उसका तरीका ये है कि उसकी आंसर बुक को 100 एग्जामिनर हो या और ज्यादा एग्जामिनर देखें, large number of examiners, and find the mean. That is the only way to estimate the true score. And similarly, those scores will also have a standard deviation. उनका एक standard deviation भी होगा. Okay. So the standard of an examiner can be measured in terms of mean marks awarded by him and standard error of those marks. देखिए, अब इसको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं. Suppose 500 answer books have been given to an examiner to evaluate. एक एग्जामिनर है, उसको 500 कॉपियां दी गई. Then he will evaluate every answer and prepare a list of marks. लिस्ट तैयार कर दी तो 500 स्कोर्स होंगे. उनका मीन और एसडी निकाला है. mean and SD, standard deviation of those marks, will be a measure of marking standard of that examiner. यानी उस एग्जामिनर का मार्किंग स्टैंडर्ड जो मीन होगा और SD होगा उससे निकाल सकते हैं. Because this mean and SD will be different if the same set of answer books is evaluated by another examiner. ये समझिए आप, अगर वही 500 आंसर बुक्स दूसरे एग्जामिनर को दी जाए क्योंकि उसका स्टैंडर्ड अलग है मार्किंग का, तो ये मीन और SD उस केस में अलग होगा. फॉर एवरी एग्जामिनर इट विल बी डिफरेंट.
So therefore, an examiner's marking standard can be measured in terms of mean score and standard deviation of awards given by him for a set of scripts. एक आंसर बुक्स का एक स्टेप वो है, सेट है, उस पर जो मार्क वो देगा, तो उससे हम उसका मार्किंग स्टैंडर्ड मेजर कर सकते हैं. दिस इज द ओनली वे of evaluating the marking standard of an examiner for an essay type test. ये तरीका उसका है. एक चीज और हमको यहां देखनी है. देखिए, distribution of marks awarded by an examiner on a set of scripts, यानी 500 आंसर बुक्स एक एग्जामिनर को दी गई, उसने एग्जामिन की, तो जो मार्क्स होंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन और बाय मेनी एग्जामिनर ऑन ए सिंगल स्क्रिप्ट. देखिए ये इसको समझने पड़ेगा. एक एग्जामिनर यानी बहुत सारे एग्जामिनर एक कॉपी को 500 बार, सॉरी, एक ही कॉपी को 500 एग्जामिनर इवेल्युएट करें और एक ही एग्जामिनर कॉपी को 500 बार इवेल्युएट करे इंडिपेंडेंटली. दोनों सिचुएशन को समझिए. एक ही स्क्रिप्ट है, एक एग्जामिनर है, उसने उसको 500 टाइम्स इवेल्युएट किया इंडिपेंडेंटली, assuming that he doesn't know or he doesn't remember what score he awarded last time. पिछली बार उसने क्या दिया याद नहीं. देखिए सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. एक आंसर बुक है, एक एग्जामिनर उसको 500 टाइम्स एग्जामिन करता है, लेकिन उसे याद नहीं रहता कि उसने पहले क्या दिया था. तो एक ही स्क्रिप्ट पर वो 500 स्कोर देगा. ओके, अब दूसरी सिचुएशन देखिए. 500 answer books are examined by the same examiner. Then there will be a distribution of 500 marks. Both these situations are statistically equivalent. इसको हम बराबर मानते हैं, दोनों एक ही बात है. And both the times the distribution will be normal. Normal होगा distribution दोनों तरह से. Assumption ये है that observations are large in number. ऐसा नहीं कि 10-20 ऑब्जर्वेशन, उससे नहीं होगा नॉर्मल. लार्ज का मतलब 500 ही नहीं, 500 तो मैंने एग्जांपल दिया, इट मे बी several thousand, बहुत सारी हो सकती है. एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ दोज मार्क्स, उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, दैट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मार्किंग. इसको हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मार्किंग कहते हैं. Standard error of marking is an important concept which will be used later on to define grade. Grade को define करने में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको समझना पड़ेगा. You know, standard error of marking is a standard deviation of marks awarded by an examiner on a large number of scripts. ये समझ लीजिए, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, उन पर मार्क्स जो आएंगे उनका एसडी वो स्टैंडर्ड ऑफ मार्किंग होगा. ओके, ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब 2-3 कॉन्सेप्ट्स यहाँ और हैं, लाइक सब्जेक्टिविटी और लैक ऑफ रिलायबिलिटी. ये भी एक चीज है. लैक ऑफ रिलायबिलिटी, ये दो चीज. दिस इज ए मेजर ऑफ, यानी सब्जेक्टिविटी इज ए मेजर ऑफ चांस वेरिएशन. इन केस ऑफ ए सिंगल इवेंट, इन केस ऑफ ए सिंगल इवेल्युएटर, अगर एक ही एग्जामिनर है, इट इज अनरिलायबल, तो उसको हम अनरिलायबिलिटी कहेंगे. ये जो वेरिएशन होता है ना मार्क्स में, एवरी टाइम आदमी बार बार एग्जामिन करे तो वेरिएशन होता है, तो उस वेरिएशन को हम दो तरह डिफाइन करते हैं. इसको हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं या लैक ऑफ रिलायबिलिटी भी कहते हैं. देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक ही इवेल्युएटर को अगर एक ही स्क्रिप्ट बार बार इवेल्युएट करने को लिए दी जाए, तो एवरी टाइम ही अवार्ड्स डिफरेंट मार्क्स.
क्यों, ऐसा क्यों है? Why not the same marks every time? Unless he remembers the previous score. देखिए, अगर उसको पहला याद है और वो उसी को बार बार देता है तो अलग बात है. हम ये मानते हैं कि उसका अपना पहले जो अवार्ड किया वो उसको याद नहीं रहता, he doesn't remember. तो this is because of variables associated with the evaluator. There are certain variables which affect the marking behavior of the examiner other than the quality of marks. यानी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ आंसर, क्वालिटी ऑफ आंसर के अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो एग्जामिनर्स के मार्किंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. एंड एनी वेरिएशन ड्यू टू दोज वेरिएबल इज कॉल्ड चांस वेरिएशन. उसको चांस वेरिएशन कहते हैं या सब्जेक्टिविटी भी कहते हैं. वही सब्जेक्टिविटी है कि अगर एग्जामिनर बार बार एक ही स्क्रिप्ट देखे और अलग अलग मार्क्स दे, दिस इज सब्जेक्टिव. इसी को हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं. एंड दैट इज व्हाई ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर नॉट सब्जेक्टिव. तभी हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस टाइप है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होते हैं. क्यों? बिकॉज उनका दो सच क्वेश्चंस हैव वन एंड ओनली वन करेक्ट आंसर. उनमें एक ही आंसर सभी होता है. एंड whoever evaluates manually or mechanically, score will be the same. उसमें स्कोर नहीं बदलता. इतने ही लोग देखें अलग अलग उसको, या मशीन से देखा जाए, बार बार उसको स्कोरिंग की जाए, स्कोर विल बी द सेम. इसलिए हम कहते हैं सच ए टेस्ट या सच ए क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव. तो ये है आइडिया. तो ये ए सिंगल इवेल्युएटर मार्किंग ए सिंगल स्क्रिप्ट a large number of times and a large number of evaluators evaluating a single script are assumed to be statistically equivalent processes. इसकी बात हम कर चुके हैं. Resulting in the same mean and same SD. ये तो वही बात है जो हम पहले कर चुके. अब हम आते हैं कि क्या लॉजिक है इसके बिहाइंड ग्रेडिंग. Actually, some research studies have shown that standard error of marking in India is nearly 10%. यानी जो चांस वेरिएशन है वो 10% का असर डालता है हमारे यहाँ इंडिया. वो ज्यादा कम भी हो सकता है. इंडिविजुअल, it depends on the individual examiner. Any, one person can have 10% variation. The other can have 12% variation. A third can have 8% variation. It depends on the examiner. But this is the average. Overall 10% variation होता है. That means इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इसका मतलब ये हुआ, if one examiner has awarded 50 marks, एक एग्जामिनर मान लीजिए 50 या 45 लिखा हुआ है 45. This means that if a student obtains 45 marks on an ST test by one examiner, एक एग्जामिनर ने 45 मार्क्स दिए, and if his script is evaluated by another examiner, he may award marks anywhere between 35 and 55. इस बात को समझना पड़ेगा. Because there is always a possibility of 10% error. हम ये मानते हैं कि 10% error की possibility है. There can be 10% variation both sides. यानी प्लस माइनस दोनों तरफ 10% का वेरिएशन हो सकता है. If the same script is re-evaluated by another person. ये है आइडिया. तो अगर एक एग्जामिनर ने 45 मार्क्स दिए हैं तो दूसरा एग्जामिनर 35 भी दे सकता है लोएस्ट, एंड हाईएस्ट 55 भी दे सकता है. तो इसी को कहते हैं हम कि ये वेरिएशन है. अब इसका मीनिंग क्या है, इसको हम किस तरह इंटरप्रेट करें? दैट मीन्स एनी स्कोर बिटवीन 35 and 55 indicates
practically the same level of performance. इसको आप समझिए, एक एग्जामिनर ने 45 मार्क्स दिए, ओके, उसके बाद उसको जितने भी एग्जामिनर रिवैल्यूएट करें, नहीं 10-20 कितने ही एग्जामिनर रिवैल्यूएट करें, सबके मार्क्स 35 और 55 के बीच में ही होंगे। ये स्टैटिस्टिकल फैक्ट है। और alternatively we can say that the performance between 35 and 55 at any level indicates the same level, वही माना जाएगा। 45 आए तो भी हम परफॉर्मेंस वही मानेंगे और 55 आएंगे तो भी वही मानेंगे। क्यों? It is chance variation, because it's a variation by chance. अब देखिए, अब हम आते हैं कि अब हम ग्रेड को कैसे डिफाइन करें। एक चीज हमको ये मानना है, देयर इज ऑलवेज वेरिएशन इन मार्किंग। मार्किंग में हमेशा वेरिएशन होता है इफ द सेम स्क्रिप्ट इज एग्जामिन्ड बाय अदर एग्जामिनर्स, ओके, एंड द वेरिएशन between lowest and highest marks, possible highest marks indicates the same level of performance. उसको मान सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस का लेवल वही है, सेम है एवरी टाइम। नाउ अब देखिए, अब हम नाउ वी डिफाइन ग्रेड। ग्रेड का क्या मतलब है? देखिए, जब हम ये मानते हैं कि 35 और 55 इन दोनों कट स्कोर्स के बीच में performance level is the same, then why not indicate it by a single letter instead of marks? ये आइडिया। जब हम ये मानते हैं एक सर्टेन रेंज में परफॉर्मेंस वही है, whatever the point, तो क्यों ना हम उस पूरे रेंज को कहें कि ये ग्रेड ए ग्रेड है। If a range of scores indicates the same level of performance at all points with it, it may be represented by a single symbol. This is the essential logic underlying the concept of grading. ग्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके बीच में ये एसेंशियल लॉजिक है। नाउ वी डिफाइन द ग्रेड। अब ग्रेड क्या होता है इसको हम डिफाइन करते हैं। A grade is a symbol associated with a range of scores. देखिए, एक रेंज है। A grade is a symbol associated with a range of scores which is supposed to be represent more or less the same level of performance, providing for random errors of marking. हाँ जी, random error marking की वजह से जो रेंज है, क्योंकि वो सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है, तो वी मे रिप्रेजेंट इट बाय ए सिंगल symbol. So it is a symbol. Grade is a symbol which represents a range of performance, range of scores, not a point. ये एक पॉइंट नहीं बताता, ये रेंज बताता। So that is the definition of the grade. अब हम जो ग्रेड देते हैं उसको करते क्या है, ये हम सोचें। What we actually do while assigning grades. देखिए, while assigning grades, an attempt is made to identify relatively uniform score intervals on the measurement scale in a hierarchical order from lowest to highest performance. This is what we do. देखिए, फिर समझिए, हमारे पास एक स्केल है, सपोज इट 0 to 100, ये स्केल। We have a maximum score is 100, and therefore we have a scale 0 to 100. On that scale, we try to identify relatively uniform score intervals. यानी उस पूरे स्केल्स को हम इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। किस तरह? In such a way that performance within an interval
is the same. Performance within that interval is the same, but it is lower than the interval above it, and higher than the interval below it. ये इसको कहते हैं हायरार्किकल ऑर्डर, कि हम उस पूरे स्केल को इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं. These intervals may be 5, these may be 7 or even 9. जितने ग्रेड आप देना चाहें, A B C D E 5 ग्रेड, तो पूरे को हम 5 ग्रेड में डिवाइड करेंगे. डिवाइड कैसे करते हैं? डिवीजन ये होता है कि within certain interval performance level is supposed to be the same. एक इंटरवल में परफॉर्मेंस वही है, लेकिन दैट परफॉर्मेंस लेवल इज लोअर देन द नेक्स्ट हायर इंटरवल बट हायर देन द नेक्स्ट लोअर इंटरवल. इस तरह दिस इज हाउ वी डू. तो ये चीज करनी पड़ती है. टू ईच सच इंटरवल, फिर हम क्या करते हैं? टू ईच सच इंटरवल इज सिंबल और ए लेटर इज असाइन्ड टू इंडिकेट corresponding level of performance. फिर हम उनको क्या करते हैं? ए बी सी डी ई कुछ भी, या और ए प्लस बी प्लस जो भी आप कहें वो हम कर सकते हैं, वो असाइन कर सकते हैं. एंड द साइजेस ऑफ इंटरवल्स डिपेंड ऑन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मार्किंग. देखिए ये इंपॉर्टेंट है. वो जो इंटरवल्स है उनका साइज क्या होगा, इस पर डिपेंड करता है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मार्किंग कितना है. अगर कोई एग्जामिनर बहुत ज्यादा वेरिएशन करता है अपने मार्किंग में, उस केस में उसके जो इंटरवल्स है वो बड़े होंगे, और अगर उसके वो होते मार्किंग बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं तो छोटे हो जाएंगे, क्योंकि उसका रेंज भी कम होगा इन दैट केस. तो ये चीज भी एक इसमें इन्फ्लुएंस करती है, असर डालती है. नाउ वी कम टू व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ग्रेडिंग. तो ग्रेडिंग करने के तरीके क्या क्या है, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स, उसके बारे में बात करेंगे. देयर आर टू मेजर अप्रोचेस. दो अप्रोच है इसकी. एक को कहते हैं डायरेक्ट ग्रेडिंग. वन इज डायरेक्ट ग्रेडिंग एंड द अदर इज स्टैटिस्टिकल ग्रेडिंग. दो तरीके हैं साहब ग्रेडिंग करने के. वैसे एक तो है डायरेक्ट, सीधे यू रीड द आंसर and award grade directly A, B, C, D. And this is the system which is being followed by IGNO. IGNO आजकल यही सिस्टम फॉलो करता है. What IGNO wants is that examiners should read a question. You know, normally their answer book has 4 questions. 4 questions करवाते हैं वो स्टूडेंट से, and the examiner is supposed to read each question carefully and award grade out of 5 grades, A, B, C, D, E. 5 grade में से वो award दे, and then he read the second question and again award the grade. That way, on each question separate grade is awarded. है ना, अलग ग्रेड दिया जाता है depending on the quality of the question. And then on the basis of weightage assigned to these letter grades, GPA is calculated, for which they suggest a procedure. उसका प्रोसीजर दिया हुआ होता है. तो इस तरह से हम करते हैं. So what is the process? You don't have to go for numerical marking. डायरेक्ट ग्रेड में क्या होता है? न्यूमेरिकल मार्किंग नहीं करनी होती. सीधे you just read the answer book, read the answer, exercise the best of your judgment, and award grade A, B, C, D, E, any of them. So this is direct grading. And then the further process for finding computing GPA. तो ये एक तरीका है. दूसरा है स्टैटिस्टिकल ग्रेडिंग. स्टैटिस्टिकल ग्रेडिंग में क्या है? फर्स्ट न्यूमेरिकल मार्किंग इज डन. पहले इसमें न्यूमेरिकल मार्किंग की जाती है, लाइक वी हैव बीन डूइंग, जैसे हम करते रहे आज तक. And then the marks obtained are converted into letter grades by using certain statistical procedures. उसमें ये होता है, पहले मार्किंग करिए जैसे हम करते आए, फिर उन मार्क्स को हम ग्रेड्स में कन्वर्ट करते हैं.
उसके लिए प्रोसीजर्स है, उसकी बात हम आगे करें। ये लिखा हुआ है, इन द स्टैटिस्टिकल ग्रेडिंग इवैल्यूएटर अवार्ड्स न्यूमेरिकल मार्क्स ऑन एवरी क्वेश्चन and then converts them into grades by using certain statistical or arithmetical process. तो ये है, लेकिन इसमें एक चीज करनी पड़ती है, before we convert the marks into grades, all numerical scores are supposed to be converted to common scale. common scale पे होना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि हम डायरेक्टली है क्या, ग्रेड देने के लिए हमें सभी पेपर्स जो है ना, सभी सब्जेक्ट से मार्क्स को कंबाइन करना पड़ता है. You know, marks on all the different subjects or subjects are combined, ऐड किए जाए. ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, तो सीधा सीधा अर्थमेटिकली ऐड कर देते हैं, वो जो कि गलत प्रोसेस है. यू कैन नॉट ऐड देम. द रीजन बीइंग, देखिए एक मैथमेटिक्स टीचर है, एक इंग्लिश का टीचर है, एक सोशल साइंस का टीचर है, यू नो लाइक दैट, एक मैथमेटिक्स का, सबका मार्किंग स्टैंडर्ड अलग अलग है. And therefore marks of a student on different subjects cannot be added. ऐड नहीं किए, डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते. जो हम करते आए हैं ना, कि पूरे मार्क्स हम ऐड कर देते हैं और फिर परसेंटेज निकाल देते हैं, वो गलत है. हम उसको ऐड नहीं कर सकते. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने मीटर्स और फीट को जोड़ दिया. बोथ आर डिफरेंट स्केल्स, दोनों अलग स्केल, दोनों को कैसे ऐड कर दिया. तो फर्स्ट थिंग इज दैट ऑल हैव टू बी कन्वर्टेड टू कॉमन स्केल. तो ये चीज सबसे पहले करनी पड़ेगी. देखिए इस तरह समझिए, सपोज देयर आर टू प्लॉट्स ऑफ लैंड, यानी दो प्लॉट है. फॉर वन मेजरमेंट इज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ मीटर, स्क्वायर मीटर्स. एक का तो मेजर स्क्वायर मीटर्स में है, दूसरे का स्क्वायर फीट में. तो टोटल एरिया कितना है कैसे मालूम करोगे? दोनों को एज इट इज नहीं जोड़ सकते. What you have to do is either meter scales have to be converted to square feet or square feet have to be converted to square meter. Then only addition is possible. तभी आप उसको जोड़ सकते, ऐड कर सकते. तो सेम थिंग इज ट्रू हियर. यही बात यहां सच है. इंग्लिश टीचर के और मैथमेटिक्स टीचर्स के मार्क्स को आप जोड़ नहीं सकते फॉर ए स्टूडेंट, बिकॉज देयर मार्किंग स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट. So therefore, the first thing before grading is to be done is that all scores in different subjects are to be converted to a common scale. इसके लिए अलग प्रोसीजर्स हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड इसके लिए अवेलेबल है. और उसके बाद जब हम ग्रेडिंग कर लेते हैं तो फिर जीपीए वगैरह निकाला जाता है, वो एक अलग इश्यू है. अब हम आते हैं अब हम ये मान लें, अच्छा डायरेक्ट ग्रेडिंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना. इसमें क्या होता है कि रीड द आंसर एंड डायरेक्टली अवार्ड ग्रेड. ओके, इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं. लेकिन इसमें भी लोगों का कहना ही है, सम एक्सपर्ट्स से, दैट पर्सनल जजमेंट ऑफ द इवैल्यूएटर इन्फ्लुएंसेस हिज ग्रेडिंग. तो देखिए सब्जेक्टिविटी तो वहां भी आ जाएगी. You know, some examiners may tend to award higher grades than the other. वहां भी पॉसिबिलिटी है. तो ये सब पॉसिबिलिटीज तो है कि वेरिएशन उसमें भी पॉसिबल है. इवन देन दिस इज सपोज टू बी मोर डिपेंडेबल इन रिलेशन टू दी न्यूमेरिकल मार्क्स. फिर भी ये मानते हैं कि न्यूमेरिकल मार्क्स से ज्यादा डिपेंडेबल, यानी ग्रेड में कम वेरिएशन होगा, न्यूमेरिकल मार्क्स में ज्यादा वेरिएशन, इसलिए इसको ज्यादा डिपेंडेबल माना जाता है. तो ये एक चीज अलग इश्यू हुई है. ओके,
ये कुछ नहीं, ये तो हम साथ साथ डिस्कस करते गए हैं. दिस में बी ट्रू फॉर ए टीचर मेड टेस्ट, लॉन्ग ऐसे टाइप टेस्ट. बट व्हेन ए ग्रेटर प्रिसीजन इज डिजायरेबल, देखिए व्हेन यू नीड ग्रेटर प्रिसीजन लाइक सिलेक्शन टेस्ट, तो वहां ये नहीं चलता. जब सिलेक्शन टेस्ट करता है तो आप ग्रेड के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं कर सकते. तो इसकी अपनी 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 लिमिटेशन है. डायरेक्ट ग्रेडिंग मेथड to be somewhat successful for teacher made tests also, all evaluator must agree on the meaning of the quality answer. देखिए ये एक प्रॉब्लम है. अगर हम डायरेक्ट ग्रेडिंग करें तो जितने भी इवेल्युएटर्स हैं all have to agree on the quality of answers. उसमें ये दिक्कत है सबको, यानी all should meet and discuss the question and decide, you know, the quality of each answer. ये सब करना पड़ेगा. तो ये सब डायरेक्ट ग्रेडिंग के बारे में है. नाउ स्टैटिस्टिकल ग्रेडिंग, जिसको हम ग्रेडिंग ऑन द कर्व भी कहते हैं. स्टैटिस्टिकल ग्रेडिंग के बारे में हमने कहा कौन सा मेथड है. फर्स्ट न्यूमेरिकल मार्किंग इज डन and then those marks are converted to grades by using certain statistical methods. इसको हम ग्रेडिंग ऑन द कर्व भी कहते हैं. ग्रेडिंग ऑन द कर्व. This involves scoring answers in terms of numerical marks, followed by converting them to letter grades using statistical process. ये हम बात कर चुके हैं. Scores on different papers or components of examination are combined after scaling on a common scale. ये भी इसकी बात भी हम कर चुके हैं. And the resulting composite scores are converted into letter grades using, अब देखिए अब इसके भी दो तरीके हैं, ग्रेडिंग ऑन द कर्व या ग्रेडिंग ऑन द कर्व और न्यूमेरिकल मार्किंग के बेसिस पर, इन स्टैटिस्टिकल मेथड से कहते हैं. स्टैटिस्टिकल अप्रोच आल्सो हैज टू टाइप्स. इसके भी दो तरह हैं, या और देयर आर टू टेक्निक्स. वन इज एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, द अदर इज रिलेटिव ग्रेडिंग. देखिए डायरेक्ट ग्रेडिंग तो हमने डिस्कस कर लिया, उसका तो एक ही तरीका है. बट ये जो स्टैटिस्टिकल ग्रेडिंग है, दिस हैज टू डिफरेंट अप्रोचेस. वन इज एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, द अदर इज रिलेटिव. अब इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल. देखिए एब्सोल्यूट ग्रेडिंग क्या है. फर्स्ट स्टेप तो सबके लिए वही है. फर्स्ट स्टेप इज मार्किंग द आंसर बुक्स इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल मार्क्स. पहले तो आप मार्किंग करिए और न्यूमेरिकल स्कोर करिए. दैट इज द फर्स्ट. अब उसके बाद उनको कंबाइन करते हैं. उसके बाद ये चीज शुरू होती है. व्हेन फॉर ईच ग्रेड परफॉर्मेंस लेवल इज फिक्स्ड. देखिए आप समझिए एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में क्या है. For each grade level, cut scores are fixed in advance. Cut score हम पहले से तय कर लेते हैं. In numerical terms, like 60% marks for a first division. This is absolute grading. इसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग भी कहते हैं. तो जो ट्रेडिशनल हमारा तरीका है ना, 36 and below fail, 36 and 45 third division, 45 to 60 second division, 60 and above first division. This is a kind of absolute grading. ये absolute grading ही है. Division is a grade, वो भी एक grade है, because 45 to 60 is a performance range. वो एक स्कोर रेंज है जिसको हम कहते हैं सेकेंड डिवीजन. एक ही सिंबल से इंडिकेट कर देते हैं, तो वो भी ग्रेड है. इस एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, वो भी एक तरह से एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, और इसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग भी कहते हैं. देखिए इसकी खासियत में क्या है.
इसमें जो कट स्कोर है ये पहले से तय किए जाते हैं एंड देन एग्जामिनीज आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस लेवल। यानी कट स्कोर पहले से तय किए और उसके बाद किसके कितने मार्क्स हैं उसको देखकर उसको ग्रेड में प्लेस कर दिया जाता। तो ये है। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, इसको क्राइटेरियन रेफरेंस भी कहते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। ओके, दिस वी हैव ऑलमोस्ट डिस्कस्ड। ओके, अच्छा, इनमें इन द सेम थिंग, इफ द स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, अगर स्कोर यानी इफ द नंबर ऑफ एग्जामिनीज इज वेरी लार्ज, and in that case it can be expected that distribution of score would be normal and grade intervals are equal. अगर हम ग्रेड intervals को equal मान लें, then each grade covers a distance of about 1.2 standard deviation units on the baseline of the curve. थोड़ा सा जिनको नॉर्मल कर्व के बारे में जानकारी वो इस बात को समझ पाएंगे। नॉर्मल कर्व extends from minus infinity to plus infinity, that you know, that is the theoretical limits of a normal curve, but practically normal curve extends from minus 3 standard deviation to plus 3 standard deviation, यानी मीन से 3 standard deviation नीचे और 3 standard से ऊपर। This is the practical limit of extension of a normal curve. उसमें क्या होगा कि हम that means the total distance on the baseline is 6 standard deviation, 3 SD मीन से नीचे और 3 SD ऊपर, so that the total distance from the lowest to the highest score is 6 standard deviation, 6 SD होगा। And if there are 5 grades to be awarded, A, B, C, D, and E, then that distance needs to be divided into 5 equal parts. Yeah, 5 equal intervals. That means 6 SD divided by 5 is 1.2. That means one grade will cover a distance of 1.2 standard deviation on the baseline. ये है उसका आइडिया। And since the distribution is assumed to be normal, the middle grade C, क्योंकि देखिए सब टॉप में A ग्रेड होगा, उसके बाद B होगा, मिडिल में C होगा, उसके बाद नीचे D and lowest grade will be E. Middle grade will cover about 40% of the cases, यानी 40% लोगों का C ग्रेड आएगा and 23% students will get B and D. 23% will be placed in B grade, which is upper than C, and 23% will be placed in D grade, which is lower than C. Similarly, the lowest and the highest grades will cover 7% cases each. हर एक में 7% cases. इस तरह से होगा डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का। तो अब देखिए टोटल इसका 100 होगा। A and E together, that is lowest and the highest, will cover 14% of the cases, 7 plus 7. Then B and D will cover 23 each, which is 46. So 46 plus 14 is 60. And the middle one is 40. So 100% पूरा हो गया। Similarly, if you have 7 grade system, अगर 7 ग्रेड होंगे तो क्या होगा? 6 SD distance would be divided by 7. And each grade level will cover a distance of 0.86 standard deviations. It's simple arithmetic. तो इसमें कुछ कोई खास चीज नहीं है। देखिए इससे थोड़ा सा मैं बात को क्लियर करना चाहता हूं। This is a report card of a school.
ये एक स्कूल का रिपोर्ट कार्ड है जिसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, दे मेजर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑन ए 7 point grade, A plus, A, B, C, D, E and F. These are the 7 points on which they grade their students' performance. And they have also described grades. A plus means excellent, A means very good, B means good, C is satisfactory, D is average, E is weak, and F is very good. And then they have decided score ranges also in advance. पहले से उन्होंने तय कर लिया 85% and above जिसका होगा, he will be awarded A plus. Those who score between 75 and 84, they will be awarded A grade, and so on till the last. Below 33% is fail, F, very poor. तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पहले से एडवांस में डिसाइड किया, इवन बिफोर एग्जामिनेशन, इम्तिहान से पहले ही तय कर लिया, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन उन्होंने तय कर लिया कि ये होगा। अब देखिए इसकी क्या प्रॉब्लम्स है, एंड दिस इज इजीएस्ट। देखिए ये ग्रेडिंग का सबसे आसान तरीका कि आप पहले से तय कर लीजिए और उसके बाद जिस स्टूडेंट के जितने मार्क्स आए उसको देखते हुए उसको ग्रेड में प्लेस कर दीजिए, दैट्स ऑल एंड दैट्स सिंपल। इसकी प्रॉब्लम्स क्या होंगी साहब? एब्सोल्यूट ग्रेडिंग इज अफेक्टेड बाय मार्किंग स्टैंडर्ड। जस्ट सी, ये मार्किंग स्टैंडर्ड उसको इफेक्ट करेगा। मीन एंड एसडी ऑफ एन इवेल्युएटर, जो एग्जामिनर होगा उसका मार्किंग स्टैंडर्ड क्या है, ये उसको असर डालेगा। इफ एन एग्जामिनर इज स्ट्रिक्ट, देखिए अगर कोई एग्जामिनर स्ट्रिक्ट है, awards of strict examiner result in a positively skewed distribution, तो समझना पड़ेगा। a larger number is awarded lower grades। देखिए इसमें क्या होगा, स्ट्रिक्ट एग्जामिनर क्या करेगा कि लो ग्रेड ज्यादा लोगों के, आई मीन लो मार्क्स ज्यादा लोगों के आएंगे और हाई मार्क्स कम लोगों के आएंगे। यानी जो स्ट्रिक्ट होगा वो कम मार्क्स, ज्यादा लोगों को लो मार्क्स देगा और बहुत कम लोगों को हाई मार्क्स देगा, एंड देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी पॉजिटिवली स्क्यूड। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि एक्सेलेंट और वेरी गुड में बहुत कम लोग आएंगे क्योंकि मार्क्स उसने ज्यादा दिए ही नहीं, एंड देन द लोअर ग्रेड E, D, C, these will cover large number of people, इसमें ज्यादा लोग आ जाएंगे। सिमिलरली अगर इसका उल्टा है, अगर कोई एग्जामिनर लीनियंट है, लीनियंट एग्जामिनर गिव हाई मार्क्स टू मोर पीपल देन लो स्कोरर। जो लो स्कोरर होंगे वो कम होंगे नंबर में और हाई स्कोरर ज्यादा होंगे, एंड इन दैट केस grades will be concentrated on A plus, A and B, ऊपर माने अपर ग्रेड ज्यादा लोगों के होंगे, लोअर ग्रेड कम लोग। तो मार्किंग स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनर विल इन्फ्लुएंस द ग्रेड्स इन एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम। ये जो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है जिसमें कट स्कोर पहले से तय किए जाते हैं, उसमें एग्जामिनर का मार्किंग स्कोर उसको उस पर असर डालता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे स्कूल के ग्रेडिंग एक ही एग्जामिनर करे, सबकी कॉपियां वही देखे बिकॉज मार्किंग स्टैंडर्ड इज द सेम। ये पॉसिबल नहीं है। हर सब्जेक्ट के अलग एग्जामिनर होते हैं, सो मार्किंग स्टैंडर्ड वेरीज फ्रॉम एग्जामिनर टू एग्जामिनर। सो दिस इज द वीकनेस ऑफ ग्रेडिंग एब्सोल्यूट ग्रेडिंग की ये प्रॉब्लम है। एंड वेरिएशन ऑल्सो, देखिए variation of marks by the examiner also influences it. There are some examiners who spread their awards in narrow range. देखिए कुछ ऐसे एग्जामिनर होते हैं जो बहुत कम नंबर भी नहीं देते किसी को
और बहुत ज्यादा नंबर मार्क्स भी नहीं देते. There are people, they don't award below 40 and also don't award below 65, above 65. 40 to 65, that is the range. उस केस में क्या होगा? B, C, D grade बस, और कुछ नहीं. Nobody above B and nobody below D. That will happen. Similarly, if variation is high, अगर कोई एग्जामिनर ऐसा है जिसका हाई होता है, वो 10 तक भी मार्क्स देता है और 90 भी देता है, in that case, the grades will also be distributed widely. तो कुछ को A grade भी मिलेगा और E भी मिलेगा, D भी मिलेगा, like that. So variation will also make a difference. So mean of awards and SD of award both make a difference. That means marking standard of examiner influences grading, this one, absolute grading. इस पर उसका असर पड़ता है. तो ये इसकी एक लिमिटेशन है. Anyway, now we come to relative grading, the other. अब दूसरा मेथड क्या है, उस पर हम आते हैं. When examinees are evaluated by relative positions, देखिए यहाँ क्या है, relative position यानी रैंक इंपॉर्टेंट है. When examinees are evaluated by relative positions in the tested group, grading is said to be relative or norm referenced. इसको हम norm reference कहते हैं. देखिए इसको थोड़ा समझिए. Best student in this approach is given rank 1. जहां रैंकिंग की बात होती है ना, वहां जो बेस्ट है उसको रैंक 1 मिलता है. Whoever the examiner lenient हो, examiner strict हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, so long as the best person is on rank 1. जो बेस्ट है वो सबसे अच्छा है. एग्जामिनर कोई हो, मार्क्स कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इफ ही इज द बेस्ट तो उसका कोई असर नहीं पड़ता. तो रिलेटिव पोजीशन की ये बात है. When grading is in relation to performance other examiners, यानी दूसरे एग्जामिनर्स का क्या आया. देखिए ये जो हमारा एब्सोल्यूट ग्रेडिंग था, इसमें अपने मार्क्स, a student's own marks decide his grade. यानी वो खुद उसके कितने मार्क्स है उससे ग्रेड तय होता है, क्योंकि कट स्कोर पहले से डिसाइड किए हुए. इसमें ऐसा नहीं होता. इसमें क्या है, ग्रेड इज डिसाइडेड और हिज पोजीशन इज डिसाइडेड हाउ अदर्स इन द ग्रुप हैव परफॉर्म्ड. दूसरों ने कैसा किया इस पर डिपेंड करता है. देखिए रैंक तो इस पर डिपेंड करेगा. if an examinee is tested along with a good group, एक अच्छा ग्रुप है, उसके साथ अगर वो है तो उसका रैंक नीचे आ जाएगा, because others are good. And if he is examined along with a poor group, then his rank will be high, तो उसका रैंक बढ़ जाएगा. तो quality of the group makes a difference here. So relative grading में ये गड़बड़ है कि उस जो ग्रुप टेस्ट हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो अच्छा है या वो ग्रुप खराब है. तो हर स्टूडेंट, एवरी एग्जामिनरीज पोजीशन विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय उससे उसका असर है. तो ये इसकी इंपॉर्टेंट है. ओके, ये तो हम डिस्कस कर चुके, इसमें कुछ नहीं करना है. अब हम एब्सोल्यूट ग्रेडिंग बिगिन. देखिए अब दोनों में थोड़ा सा फर्क समझने की कोशिश करें. लेट अस try to understand the difference between two approaches. Absolute grading begins with fixing in advance the cut scores for each grade level and ends with finding out number of examinees to be placed in each grade.
ये है उसका। जो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है उसमें क्या होता है, इट बिगिंस विद फिक्सिंग इन एडवांस द कट स्कोर। कट स्कोर एडवांस में तय करने से शुरू होती है, एंड इट एंड्स विद प्लेसमेंट ऑफ एग्जामिनीज इन रेस्पेक्टिव ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर। इस पे वो खत्म हो जाता है। रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या है, इट बिगिंस विद फिक्सिंग इन एडवांस द प्रोपोर्शन और नंबर ऑफ एग्जामिनीज टू बी प्लेस्ड इन ईच ग्रेड। देखिए इसमें पहले तय करते हैं, we decide in advance that we'll award highest grade or A grade to the best 10% of the group। हम पहले से तय करते हैं, पहले से हम नंबर तय करते हैं, कट स्कोर नहीं, कि हम जो बेस्ट 5% है या बेस्ट 10% है उनको A ग्रेड देंगे, नेक्स्ट 15% को हम B ग्रेड देंगे, उसके बाद नीचे वाले 20% होंगे उनको हम C ग्रेड दे देंगे, लाइक दैट। तो दिस इज हाउ इट गोज ऑन। इसमें ये तय करते हैं कितने लोगों को या कितने परसेंट को हमें कौन सा ग्रेड देना है, ये चीज पहले से इसमें तय की जाती है, एंड अकॉर्डिंगली पीपल आर प्लेस्ड इन द ग्रेड्स। ये फर्क है दोनों। कट पॉइंट्स बाद में तय होते हैं इसमें, यानी बेस्ट 10% का लोएस्ट कट पॉइंट क्या होगा ये तो बाद में तय होता है, पहले से तय नहीं कर सकते। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू अप्रोच। एक में कट स्कोर पहले तय होता है, नंबर ऑफ पर्संस टू बी प्लेस्ड इज डिसाइडेड लेटर। इन द अदर द प्रोसेस इज जस्ट रिवर्स। पहले हम तय करते हैं कितने लोग करेंगे, एंड देन ऑटोमेटिकली द कट स्कोर कम्स। ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें एक चीज और है, स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन मे और मे नॉट बी नॉर्मल, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द ग्रुप। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो नॉर्मल हो ये जरूरी नहीं है, ये भी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। देखिए, इफ ए गुड ग्रुप इज टेस्टेड, दैट मीन्स स्टूडेंट्स अच्छे हैं, एक क्लास है मान लीजिए सेक्शन ए जिसमें सभी अच्छे स्टूडेंट हैं, तो क्या होगा, दे विल ऑल गेट हाई मार्क्स, उनके हाई मार्क्स आएंगे। और उस केस में क्या होगा कि लोअर ग्रेड में कोई नहीं आया, तो ये उसमें होगा, सिर्फ हाई ग्रेड ही मिलेगा लोगों को, है ना। और तब डिसाइड, लेकिन उसमें भी क्या होगा, क्योंकि हमने पहले से तय किया हुआ है कि हम ए ग्रेड 10% को ही देंगे। देखिए स्टूडेंट अच्छे हैं, students are good, that we know, the group is good, but since we have decided in advance that we'll give A grade only to 10%, तब क्या होगा, many students who deserve A grade will not get A grade। बहुत से जिन्हें A grade डिजर्व करते हैं वो A grade नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको 5% को ही देना है, 10% को ही देना है, पहले से तय कर दिया। तो इसमें ये प्रॉब्लम है, many deserving students will get lower grade than what they deserve। और उल्टा भी हो जाता है कई बार, अगर ग्रुप पुअर है, सपोज देयर इज ए ग्रुप व्हिच इज वेरी पुअर एंड नोबडी डिजर्व्स ए, बट वी विल गिव ए बिकॉज वी हैव डिसाइडेड दैट बेस्ट 5% विल गेट ए। जो ऊपर के होंगे, भाई पुअर ग्रुप में भी तो कुछ लोग होंगे जिनके जो टॉप 5% है, तो उनको हम ए ग्रेड दे देंगे ऑल्दो दे डोंट डिजर्व। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। क्वालिटी ऑफ द ग्रुप ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस ग्रेडिंग ऑन द कर्व। जो क्वालिटी होती है, ग्रुप कैसा है, इसका भी असर इस पर पड़ता है। तो ये इसकी प्रॉब्लम्स हैं। तो दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। डायरेक्ट ग्रेडिंग जो है उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, उससे हम ग्रेड पहले तय कर लेते हैं, आई मीन कट स्कोर पहले तय कर लेते हैं, एंड देन स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड in respective grades according to their score।
and that process is influenced by marking standard of the examiner. And यहाँ दूसरी प्रॉब्लम, ग्रुप के साइज पर डिपेंड करता है. So both the methods have their own limitations. ये तो हमने आपको कल भी दिखा दिया, वही है, grades and grade points as suggested by the UGC. UGC ने जो दिया है कि ये है, ये सिस्टम फॉलो करना है हम लोगों को. And so far different institutions who are following grading system have been following different patterns. तो अब आगे फ्यूचर में क्या होगा, अलग पैटर्न हम नहीं फॉलो कर सकते. We have to go for 9-point grades. ये जो दिया हुआ है इसी में रहना पड़ेगा. 9 है या 9-point grade, इसी को सबको फॉलो करना. Then only uniformity will come. क्योंकि the purpose is to bring about uniformity in the system. और ये तभी आएगा जब हम यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करें. So this is the system which will be followed by all institutions as a part of choice-based credit system. सर हाँ जी, एक Yes. ये पिछले टर्म में आपने बताया था ना जो क्रेडिट्स, हाँ, तो क्रेडिट और ग्रेड्स आपस में किस तरह से डिसाइड नहीं होते नहीं हैं? नहीं, देखिए वो हमने ग्रेड को भी डिसाइन किया तो क्रेडिट को भी डिफाइन किया था. हाँ सर, वो एक बार फिर से थोड़ा सा जानना मैं चाहता बताता हूँ. वो अच्छी बात है, आपने अच्छा सवाल पूछ दिया. जी. देखिए, ग्रेड इज ए सिंबल हम्म. टू इंडिकेट परफॉर्मेंस लेवल. जी यही बात है ना, जी वो तो परफॉर्मेंस लेवल बताता है. जी. एंड क्रेडिट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आवर्स. कितने क्लास पर वीक उसको दिए गए हैं, वो है क्रेडिट. जी सर. आई थिंक आई एम एबल टू क्लैरिफाई. यानी Yes. इफ ए पर्टिकुलर कोर्स और ए पर्टिकुलर पेपर is given 5 learning hours per week. यस सर. लर्निंग आवर्स शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टीचिंग आवर्स नहीं. यस सर. उसमें फॉर्मल क्लास भी शामिल है और फील्ड वर्क वगैरह ट्यूटोरियल भी शामिल है. जी सर. तो वील से इट्स ए 5 क्रेडिट कोर्स. तो क्रेडिट और दोनों में अलग चीज है. देखिए कई चीजें, ग्रेड है, क्रेडिट है, फिर क्रेडिट पॉइंट है, वो भी डिसाइड कल हमने डिफाइन किया था. क्रेडिट पॉइंट्स इन द एंड यू हैव टू कैलकुलेट. तो वो चीजें दोनों अलग है. एनीवे, तो अब हम थोड़े इश्यूज पर आते हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं व्हिच आर एसोसिएटेड विद दिस ग्रेडिंग सिस्टम. इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं एंड विच सम ऑफ व्हिच आर क्वाइट सीरियस. की बात हमने कर ली. देयर आर चांसेस ऑफ मिसक्लासिफिकेशन and these chances increase with increased variability and decreased reliability of the scores due to higher standard error of marking. देखिए, misclassification हमेशा possible. There is always a possibility that a student who deserves grade A is placed in grade B, and this can happen due to some variability at the cut points. कट पॉइंट्स के आसपास जो वेरिएबिलिटी होगी उससे ये पॉसिबिलिटी है मिसक्लासिफिकेशन. ए पर्सन डिजर्विंग हायर ग्रेड कैन बी प्लेस्ड इन द नेक्स्ट लोअर एंड ए पर्सन डिजर्विंग ए लोअर ग्रेड कैन बी प्लेस्ड इन द हायर ग्रेड. उसको हायर ग्रेड में प्लेस किया जा सकता है. तो ये पॉसिबिलिटी इसमें है. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज रिलायबिलिटी. अगर रिलायबिलिटी टेस्ट ना हो तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा. तो एक तो ये चीज भी था. एक प्रॉब्लम इसमें है, ग्रेडिंग सिस्टम पुट्स पुअर स्टूडेंट्स टू एडवांटेज. जो पुअर स्टूडेंट्स है उसको इसमें फायदा मिलता है, एंड एबलर वंस टू डिसएडवांटेज by clubbing them with brighter and poorer ones respectively. देखिए इसको समझिए. Suppose the cut scores are decided that C grade will be given to students between 45 and 55. Okay, this is the range 45 से 55. इस रेंज में जो आएंगे उनको हम C ग्रेड देंगे. प्रॉब्लम क्या है? 45.1
and 54.9, यानी 0.1 टॉप से 0.1 कम और बॉटम से 0.1 ज्यादा, दोनों एक ही ग्रेड में हो जाएंगे, जबकि दोनों में फर्क है। और स्पेशली व्हेन साइज ऑफ इंटरवल इज लार्ज, अगर साइज बड़ा है इंटरवल का तो ये और बड़ा इंजस्टिस है। एक स्टूडेंट अच्छा है और एक पुअर है, दोनों बाई चांस सेम रेंज में आ गए, जस्ट एट द कट पॉइंट्स लेवल दे गेट द सेम ग्रेड, दोनों को एक ही, जबकि ऐसा नहीं है वास्तव में। दोनों में इन रियली दे आर डिफरेंट, उनमें फर्क है, विजिबल डिफरेंस है। तो ये इसमें है प्रॉब्लम। सिमिलरली, अच्छा उसमें क्या हुआ, जो पुअर स्टूडेंट्स था ही गॉट एन एडवांटेज, और जो अच्छा था उसको डिसएडवांटेज, बिकॉज बोथ आर क्लब्ड टुगेदर, दोनों को क्लब कर दिया गया। तो दिस इज वन क्रिटिसिज्म ऑफ दिस सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम। देखना ये पड़ेगा कि आगे इसको कैसे कैसे डील किया जाए जब ये इंप्लीमेंट होगी। देन अब आगे इसकी और लिमिटेशंस हैं, इश्यूज हैं। Most selection and placement efforts where seats are limited, a combination of both the approaches is used. देखिए, जहां सिलेक्शन करना है, जहां सीटें कम है, लिमिटेड सीट्स, यू कैनॉट सेलेक्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स, वहां ग्रेड काम नहीं करता। क्योंकि सपोज देयर आर 20 सीट्स in a faculty per admission and there are 100 who have scored A grade. ग्रेड ऐसे हैं जिनके A ग्रेड है, लेकिन अब क्या करोगे आप? How to find 20? At least on the basis of grades you can't do it. Somehow you have to go for numerical scoring, and that's why competitive tests are held for admission. एडमिशन के लिए टेस्ट तो यूं ही होते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन करना होता है। और नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन सिलेक्शन टेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द अप्रोचेस इज यूज्ड। दोनों जो अप्रोच है उनको कंबाइन करते हैं। हम क्या करते हैं, वी हैव ए मिनिमम स्कोर कि भाई हम 40% से कम क्वालिफाइंग नहीं माना जाएगा। आई मीन 40 इज ए क्वालिफाइंग स्कोर, इससे कम पे हम लेंगे ही नहीं। दिस इज ए पार्ट ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। ये एब्सोल्यूट ग्रेड है, एडवांस में तय कर लिया कि 40 जिसके मार्क्स आएंगे उससे कम जिसका होगा उसको तो हम लेंगे ही नहीं किसी भी हालत, वो तो अपने आप बाहर हो जाएगा। उसके बाद 40 से ऊपर जो लोग आए, दे आर एलिजिबल एंड सिलेक्शन विल बी मेड आउट ऑफ दोज ओनली, and then merit will be prepared. Yani in that case it will be relative position. तब वहां रिलेटिव ग्रेडिंग होगी। दोनों चीजें काम, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग भी आपको करनी पड़ेगी एंड एब्सोल्यूट भी वो भी करना पड़ेगा, रिलेटिव ग्रेडिंग। दोनों को यूज करते हैं तब ये होता है। और आजकल हर कॉम्पिटिटिव टेस्ट में ये हो रहा है। पहले एक मिनिमम तय किया जाता है कि इससे कम होगा तो बिल्कुल नहीं लेंगे, और उससे ऊपर जो होंगे उनमें ही मेरिट बनेगी। सो दिस इज वन इश्यू, ये चीज रहनी चाहिए कि नहीं, एक मिनिमम स्कोर डिसाइड करना चाहिए या नहीं। ऑल these are some of these. सर मौजे पहने। सर एक मेरा क्वेश्चन है। Yes, please. कि जैसे कुछ एग्जाम होते हैं जिन जो वो मतलब सेम एग्जाम होता है लेकिन वो कई बार लिया जाता है। जैसे कुछ सिविल सर्विसेज के एग्जाम हैं वो कई दिन तक चलते हैं, तो उनके पेपर भी अलग अलग होते हैं। तो जब पेपर भी अलग अलग होते हैं, कोई पेपर टफ होता है, कोई पेपर इजी होता है, तो उसकी हम कैसे मार्किंग फिर करेंगे? अभी हम कहते हैं, देखिए वही हम कह रहे थे, these marks have to be reduced to a common scale. सबको कॉमन स्केल पे लाना पड़ेगा और उसके लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स अवेलेबल हैं। कंप्यूटर में आजकल तो मिनटों में होता है सबका, है ना। जैसे आप लोग जानते हैं जेड स्कोर में कन्वर्ट कर लो सबको। अगर जेड स्कोर आपने पढ़ा कहीं स्टैटिस्टिक्स में, थोड़ा बहुत यस सर।
हाँ, तो वो जेड स्कोर में कन्वर्ट कर लो एंड देन यू कैन ऐड देम, क्योंकि हमेशा कॉमन स्केल में करके उनको ऐड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। ओके सर, यस सर। हालांकि आजकल ना कंप्यूटर एज में ये सब बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से यू डेवलप ए प्रोग्राम और उसके बाद तो आप बटन दबेगा और सब प्रिंट आउट निकल आएगा। तो आजकल ये मुश्किल नहीं है, देखना ये है कि कब हो पाता है ये सब, ये होगा धीरे धीरे, वी आर पिकिंग अप दीस थिंग्स, ये सब आ रहा है। यस। सुधीर, हेलो। अच्छा अब हाँ आगे सर, हम कहते प्रणाम। हैं, अब हम नेक्स्ट चीज पे आएंगे। देखो सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। सर आपने पिछली क्लास में बताया था कि जैसे हम पीजी यूजी के बाद अगर पीजी करेंगे हाँ तो जिस सब्जेक्ट से पीजी करेंगे उस सब्जेक्ट हमारे यूजी में 24 क्रेडिट होना चाहिए, हाँ ये सर आपने बताया था। हाँ बताया। लेकिन सर आज हम लोग अगर पीजी कर रहे हैं तो हमारे यूजी में सब्जेक्ट होते ही नहीं, हम पीजी किसी भी सब्जेक्ट से कर लेते हैं। तो क्या आने वाले समय में ऐसा होगा कि जो यूजी में होगा वही नहीं पीजी करेंगे नहीं, कोई देखिए सब्जेक्ट? मैंने बताया ना कि टोटल जो क्रेडिट अर्न वो बताया था 120 होंगे पूरे हाँ सर। सेमेस्टर में। अच्छा, उनमें से जिस सब्जेक्ट में भी आपके 24 होंगे उसके लिए आप पीजी लिए एलिजिबल हो जाए। अच्छा, ऐसा दैट निश्चित कैन बी नहीं है मोर कि देन वन सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट में, एक से ज्यादा सब्जेक्ट में भी आप जी एलिजिबल हो सकते जी हैं। ये है। तो उसमें तो ये करेगा कि कितने क्रेडिट के कोर्सेज पढ़े हैं उस एरिया में, that will decide eligibility, so it will tell। Anyway, दो तीन बातें, तो दो सर बातें इसमें और बची हैं। Grades are not directly usable for making selection placement, ये चीज हम बता चुके हैं। राम समझिए जी, सिलेक्शन और अगर प्लेसमेंट कर में लो तो ये इस्तेमाल पूरा नहीं हो गया, होगा। वो कर लीजिए। These must be converted to GPA। देखिए जीपीए हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए जो नया स्कीम है ना सीबीसीएस, ये कहता है कि आप ग्रेडिंग करिए लेकिन फिर उसको जीपीए में कन्वर्ट करिए। जीपीए इज यूजेबल फॉर डिसाइडिंग मेरिट, वो उसमें मेरिट तय करने में वो यूज हो जाएगा। ग्रेड डायरेक्टली नहीं होगा, लेकिन जीपीए को आप ग्रेडिंग आई मीन मेरिट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो, दैट कैन बी यूज्ड। तो ये चीज हुई सर एंड हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि भले 6 क्रेडिट का कोई कोर्स है तो स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड में जो क्रेडिट्स उसको मिलेंगे वो उसका वेस क्या होगा, किस तरह से डिसाइड होगा? वो तो नंबर ऑफ आवर्स है ना भाई, ये तो बताए नंबर ऑफ क्रेडिट, जिसमें वीकली, जिस कोर्स में वीकली 6 क्लासेस होंगी या 6 कॉन्टेक्ट आवर्स होंगे, एंड व्हेन द स्टूडेंट विल पास दैट कोर्स इन सम ग्रेड, दैट मींस ही हैज अर्नड 6 क्रेडिट्स। जब पास हो जाएगा तो 6 क्रेडिट पूरे मिल जाएंगे, उसको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उसका ग्रेड क्या होगा, उससे मल्टीप्लाई होके उसका क्रेडिट पॉइंट बनेगा, ये कल बताया था। ठीक है सर, है ना, तो वो बताया था आपने। हाँ वो चीज है। ठीक है सर, थैंक यू। एनीवे, तो एक चीज होती है साहब परसेंटाइल रैंक। परसेंटाइल रैंक्स आर मोस्टली यूज्ड इन सिलेक्शन डिसीजन। आजकल क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन हैं वो सिलेक्शन डिसीजन में परसेंटाइल रैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। जैसे गेट है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ऑल इंडिया टेस्ट होता है, उसमें परसेंटाइल रैंक इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरे जो नेशनल लेवल के टेस्ट हैं, कॉम्पिटिटिव टेस्ट, उनमें करीब सभी में परसेंटाइल रैंक इस्तेमाल होता है, एंड विच इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिलेटिव ग्रेडिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रेडिंग सिस्टम, ये चीज हो गया। Sir, I have a question. गुड मॉर्निंग सर। सर जैसे इसमें एमए क्लासेस में हमारे यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट है सर, तो वहाँ पे 8 क्रेडिट का है वो, तो ये जो कॉन्टेक्ट आवर है या लर्निंग आवर है, ये कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उसमें प्रैक्टिकल का या ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा है, बस केवल 8 क्रेडिट दिया हुआ है। देखिए वो ये डिसीजन तो इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करेगा, है ना। देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए।
so that I come back to you. I want to come back to you. मेरी समझ में नहीं आ रहा. Anyway, I'll reconnect and then come to you. हाँ, आ गया. Got it. हाँ साहब, तो हाँ जी सर. anything more you want to ask me? अभी तो it is 10:30 exactly. So we finished it in time. और कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूछना हो तो आप पूछ. हेलो सर, एक क्वेश्चन था फ्रॉम द प्रीवियस क्लास. एक्चुअली सर, रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स, जो आप बताए थे कि कोई कैंडिडेट अगर सीबीएस सिस्टम में 2 सेमेस्टर के बाद सब्जेक्ट ट्रांसफर करना चाहिए, तो उसको क्या ये मैंडेटरी है कि वो पहले वो सब्जेक्ट को जेनेरिक में पढ़ा होगा, या फिर कोई मान लीजिए कि कोई अगर प्रोग्राम स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो बाद में कन्वर्ट करना चाहता है कोई ऑनर्स डिसिप्लिन में, इज इट इन एनी वे पॉसिबल फॉर हिम और हर? देखिए, इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि 3 तरह के कोर्सेज ना, कोर कोर्सेज हैं, है ना, उसके बाद इलेक्टिव्स हैं, और फिर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज. और पहली दोनों कैटेगरी के जो कोर्सेज हैं वो सभी 6 क्रेडिट के हैं. दैट मींस ऑल आर इक्विवेलेंट एंड दे आर इंटरचेंजेबल. कोर कोर्स कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्टिव एंड इलेक्टिव कैन बी कन्वर्टेड टू कोर कोर्स. तो अगर आदमी शिफ्ट कर जाता है दूसरे कोर्स में, तो पहले कोर्स के पढ़े हुए इलेक्टिव उसके मेन हो सकते हैं, लेकिन उसको बताना पड़ेगा अब मेरे ये मेन हो गए. एंड इन लाइन विद दैट, नहीं है ना उसमें, Yes, सबका क्रेडिट तो उतना ही है. yes sir, and in line with that और एक क्वेश्चन आ रहा था कि मान लीजिए कि लाइफ साइंस डिसिप्लिन में कोई ऑनर्स पढ़ा रहा है, तो दूसरा सब्जेक्ट का कोई ऑनर्स, मान लीजिए कोई बॉटनी पढ़ा रहा है तो जूलॉजी का ऑनर्स उसमें जेनेरिक क्लास कर रहा है. लेकिन मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट फ्रॉम मैथमेटिक्स डिसिप्लिन, he is interested in proceeding in his career in areas of biostatistics or like that. So is there any possibility for that candidate to switch over to life science during his graduation tenure? क्योंकि वो 6 क्रेडिट का कोर्स उसने पढ़ा है जेनेरिक. But previously he didn't study any life science in his previous semesters. That was the जेनेरिक कोर्स है, वो भी तो 6 क्रेडिट का है. अच्छा. वो कन्वर्ट हो जाएगा उसका मेन में, वो कोर हो जाएगा ओके, अगर वो शिफ्ट करता. ठीक. मतलब उसको जेनेरिक में रखना चाहिए ये सब्जेक्ट को, लेटर ऑन शिफ्ट होना चाहिए कहीं भी. वो तो जो भी पढ़ेगा, जो भी 6 क्रेडिट केस है, जो भी 6 क्रेडिट के कोर्सेज हैं, दीज आर इंटरचेंजेबल. ओके. अगर आदमी शिफ्ट करता है तो वो बदल जाएंगे. कोर है वो इलेक्टिव हो जाएंगे, इलेक्टिव कोर्स जो वो कोर हो जाएंगे. कैन बी डन. दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी. यही तरीका. ओके, थैंक यू सो मच सर. ओके, so that's all now. Thank you very much for attending. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you so much, sir. Thank you, 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 sir. Thank you sir. Thank you so much, sir. बहुत ही सुंदर लगता है. Goodbye everybody. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ सर, नमस्कार. बताएं. बढ़िया सर. और आ गए हैं, लेकिन बताइएगा मत किसी को. आए हैं अभी, मतलब हाँ सुबह में. अच्छा, कल चलना है यूनिवर्सिटी? चलिए, कल तो चल रहे हैं. अच्छा, हाँ, कटारा. मैंने कहा यूनिवर्सिटी चलना है ना.
नहीं नहीं, वो तो देखिए लीगली चीजों में तो भाई वो तो है ही है। आप करिए मत करिए, कोई पीछे पड़े ना पड़े, लेकिन एक एक लफा तो रहता है। नहीं तभी नहीं, वो तो है ही है। मैंने कहा ऐसे तो सही बात है, फीस वाला कल चपटने लगे। तो ये तो है। नहीं नहीं, ठीक है। अरे तो बात बात के डी वर्मा क्या बोल, क्या बोल? नहीं तो बोले कुछ नहीं, बताया नहीं। हाँ, साला। जो भी चीजें क्लियर कट हो रहा, नहीं क्लियर बोलना चाहिए साला।